Ma'am, start. Yeah, start. Good morning, everyone. Today I am going to presenting my PPT on rural marketing. Uh, this is the slide of name presentation presenter name Utsav Raja, course BCom, 4th sem, roll number 12, subject rural marketing, ID number 9852. In the third slide, I have written acknowledgement. I would like to express my special thanks of gratitude to my teacher Silpi ma'am for their able guidance and support in completing my project. I come to know about so many new things. I really thankful to her. Secondly, I would also like to thank my friend who helped me a lot in completing this project. In the fourth slide, I have written content. The first is number of villages, second electricity available, third education, fourth agriculture, fifth ration card, and sixth is transportation facility. Let's start with the first slide. The first is number of villages. The villages is 45,103, divisions 9, cities and towns 207, blocks 534, and panchayats 8,406. Now the second slide is electricity available. There are 39,073 villages are electrified. Then there are 39,073 villages are electrified, means गांव में तो इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन उनके घरों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मतलब 52% हाउस होल्ड अभी भी अनइलेक्ट्रिफाइड है. The gap between the rate of village and household electrification is sizable across several districts like in Bihar, notably in Purba Champaran and Gaya. यहाँ पे जो गैप है विलेज इलेक्ट्रिसिटी और हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग देख सकते हैं पूर्वा चंपारण और गया में ज़्यादा है, मतलब कि 100% विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन है, तो वहाँ पे 32 या 38% हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन है. Okay, in Purva Now, Champaran, East Champaran, and in Gaya, 100% electrification is there, but still in household there are only 32 to 38% electrification, right? yes, ma'am. Okay. Now the way ahead of means how to improve the household electrification. The first is सहज बिजली हर घर योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, हर घर बिजली योजना, फोकस ऑन अनइलेक्ट्रिफाइड हाउस होल्ड्स एंड इम्प्रूविंग द हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन रेट. मतलब ये जो सारे स्कीम है ये फोकस करेंगे कि कौन से गांव के घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ पे ये प्रोवाइड करवाएंगे इलेक्ट्रिसिटी. नाउ द टॉपिक इज आवर एजुकेशन. इन सोनवाई विलेज इन धनारुआ, पटना, बिहार, देयर टोटल लिटरेसी रेट इज 45.6% एंड फीमेल लिटरेसी रेट इज 70.4% ऑनली. मतलब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे सबसे कम लिटरेसी रेट है और फीमेल लिटरेसी रेट और भी कम है, तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉप आउट रेट पता कर ही सकते हैं कि कितना हो सकता है. Now in Sonway village in Dhanarua, the place that have very less literacy rate, बहुत ज़्यादा less literacy rate है, लगभग अभी अभी रिसेंट का ये डेटा है बच्चे. उत्सव, this is the recent data, only 17.4% women are educated or illiterate in that place. Ma'am, I think it is after 2015 because we can't get the current data. Okay. Means we can say that from last 5 years, if we are taking, that is not very much old data, that is kind of current data, and the literacy rate is very much less in the village. Even the female literacy rate is 17.4%. Just think about the development of Bihar. Okay, Utsa, continue. Now the way ahead is मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, साइकिल योजना, कन्या उत्थान योजना, सर्व शिक्षा अभियान, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, अवसर बढ़े आगे बढ़े. देयर आर मेनी गवर्नमेंट स्कीम्स. ये सारे जो स्कीम है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि लोग अपने राइट को जान सके कि उनका राइट टू एजुकेशन भी है एक, वो भी फ्री में ले सकते हैं, लेकिन उनको उनके पास अवेयरनेस की कमी है, इसलिए वो एजुकेशन राइट टू एजुकेशन नहीं पता है उनको.
Now the topic is agriculture and organic farming. In agriculture topic, in Siryawan village in Mohanpur Gaya, there is still drought and they face difficulty in growing crops like Kharif and Rabi. मतलब सिरियावान विलेज जो है मोहनपुर में, वहाँ पे अभी भी सूखा है और वो लोग अभी भी डिफिकल्टी फेस करते हैं जैसे कि खरीफ और रबी को उगाने के लिए. Now the topic is organic farming. It is also called जैविक खेती. Here I will explain the advantages of organic farming, which has initiated the Kedia village. In Kedia village, farmers are practicing organic farming in about 45 acres and they are making organic fertilizers at their own houses using dung, cow, urine and other elements. According to farmers, due to water holding of soil, expenditure on irrigation has come down by 50%. On the other hand, expenditure on chemical fertilizers and pesticides has come down by 90%. मतलब इन केडिया विलेज में जो है फार्मर्स जो है इनिशिएट किए हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है. मतलब 45 एक मतलब फॉर एग्जांपल इन 100 एकर्स देयर आर 45 एकर्स आर जहाँ पे ये लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, और इससे लोग का 50% इरिगेशन का भी पैसा बचता है और फर्टिलाइजर में 90% का पैसा बचता है. The reason behind it, okay, ठीक है. Now the way ahead in agriculture, PM किसान स्कीम, प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एंड ये सारे जो स्कीम है इनसे जो फार्मर है वो एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट से हेल्प ले सकते हैं. उसके बाद दे कैन ऑल्सो गेट लोन फ्रॉम किसान क्रेडिट कार्ड फॉर फार्मिंग. इन ऑर्गेनिक फार्मिंग द वे अहेड इज फील्ड ट्रिप फॉर किड्स. मतलब कि बच्चों को ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे होता है, क्या होता है, ये सब बच्चों को दिखाना चाहिए ताकि वो सीखे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है बेस्ट फार्मिंग है और इसको हम लोग घर पे भी कर सकते हैं. उसके बाद है पोस्टर कैंपेन, मतलब कि पोस्टर लगा के घरों के आसपास बता सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, जो हम लोग का ट्रेडिशनल वे ऑफ एग्रीकल्चरिंग है उससे. उसके बाद ऑनलाइन प्रमोशन मतलब वेबसाइट पे भी आप लिख सकते हैं इसके बारे में कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कितना अच्छा होता है ट्रेडिशनल वे से. उसके बाद है राशन कार्ड. In Sonmai village in Dhanarua, Patna, Bihar, in this village most of the people have not their ration card to feed their family. They have only registration receipt of ration card. मतलब कि इस सोनमई विलेज में बहुत सारे लोगों के पास अभी भी राशन कार्ड नहीं है ताकि अपने परिवार को खिला सकते हैं. उनके पास सिर्फ राशन कार्ड के रजिस्ट्रेशन का रिसीट है. मतलब कि उन लोग के पास रजिस्ट्रेशन तो कर लिए हैं लेकिन उनके पास राशन कार्ड अभी तक नहीं आया है. तो इस पे गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए. नाउ द वे अहेड इज बाय वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम. दे कैन मेक देयर राशन कार्ड और कंसल्ट विद विलेज पर सरपंच. मतलब इस स्कीम के तहत वो अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं या अपने विलेज के सरपंच से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि क्यों उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है लेकिन अभी तक राशन कार्ड नहीं मिला है. Now the transportation facilities. In city village Gaunaha, Paschim Champaran, there is no metal road and personal route to go in the village. मतलब कि कोई इस विलेज में पक्का रोड नहीं है और पर्सनल रूट भी नहीं है कि आप इस विलेज में डायरेक्टली जा सके. इसलिए बहुत सारे लोग डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन. जब कोई प्रेग्नेंट वुमेन को कहीं हॉस्पिटल में जाना होता है तो कच्ची रोड के कारण उनको बहुत दिक्कत होता है. उसके बाद then Narkatiyaganj, Ramnagar are the nearby by towns to city having road connectivity to city. मतलब ये सब रूट हैं जिनके द्वारा आप सिटी विलेज में जा सकते हैं. और इन दिस विलेज देयर इज नो प्रॉपर रेलवे स्टेशन. मतलब यहाँ पे प्रॉपर रेलवे स्टेशन भी नहीं है. आप किसी और रेलवे स्टेशन पे जाकर उसके बाद इस विलेज में पहुँचेंगे.
Now the way ahead, I have written for roads because the road is more important than train in my opinion, because road gives you a better facility to go than train if you have a personal vehicle. For roads, by Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana scheme, the main objective is to provide all weather roads to eligible unconnected habitations. मतलब इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट ये इंश्योर करता है कि कहाँ पे रोड अच्छा बना है, नहीं बना है, कहाँ पे बनाना है, ये सब गवर्नमेंट इस स्कीम के तहत जान पाती है. देन थैंक यू. वेरी गुड उत्सव. नेक्स्ट क्लास आज हम पढ़ेंगे रीजनल रूरल बैंक के बारे में. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एमएसएमई के बारे में, नाबार्ड के बारे में पढ़ेंगे, एसएसआई के बारे में पढ़ेंगे, सिडबी के बारे में पढ़ेंगे कि ये सारी बैंक और किस तरीके से एग्रीकल्चर के लिए और बाकी और एक्टिविटीज के लिए लोन प्रोवाइड करती है विलेजेस में. ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. बट टुडे वी आर गोइंग टू कवर अबाउट द रीजनल रूरल बैंक. रीजनल रूरल बैंक को लाने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि गांव में कोई भी प्रॉपर फॉर्मल वे ऑफ क्रेडिट अवेलेबल नहीं था. 1976 में ये आपका एक्ट जो है वो आया. 1975 में इसको पास किया गया और इसके लिए एक स्पेशल कमेटी को फॉर्म किया गया था जिसको हम कहते हैं नरसिम्हा कमेटी. नरसिम्हा कमेटी को बनाया गया था. इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की. उनके ध्यान में मतलब उनके अंडर में ये कमेटी को बनाया गया और ये कमेटी का काम था कि हम कितने ज्यादा रूरल एरियाज में रीजनल रूरल बैंक को बना सकते हैं. रीजनल रूरल बैंक को बनाना एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर था सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए. इसीलिए यहाँ पर 3 पार्ट में इसके बेसिकली अमाउंट को डिवाइड किया गया कि भाई किस तरीके से हम रीजनल रूरल बैंक को बनाएंगे अलग अलग पार्ट में कंट्री के. और ये बेसिकली रीजनल रूरल बैंक जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में बना. हर एक एरियाज में, हर एक स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल में रीजनल रूरल बैंक को बनाने की स्कीम लाई गई. अब जो रीजनल रूरल बैंक है यहाँ पर सिचुएशन क्या था कि यहाँ पर जो अमाउंट था रीजनल रूरल बैंक के लिए जो एक्सपेंसेस थे वो 50% किसने उठाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने खर्चा उठाया. 35% स्पॉन्सर्स कुछ बैंक थे, ठीक है, जैसे एसबीआई बैंक और 1-2-3 बैंक थे, वो उन्होंने इसके लिए खर्चा उठाया 35%. और 15% जो था वो स्टेट गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर उठाया. उसके बाद रीजनल रूरल बैंक बनाया गया और लगभग 1 साल में ही 5 से 10 रीजनल रूरल बैंक को बनाया गया. 1 साल के अंदर में 1976 में ही. उसके बाद धीरे धीरे इसकी जो अमाउंट थी ये 129 के अराउंड बढ़ गई. यानी 129 रीजनल रूरल बैंक पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्रेजेंट थे. लेकिन स्टिल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था रीजनल रूरल बैंक में क्योंकि यहाँ पर एनपीए का जो सीन था बहुत ज्यादा बढ़ गया. एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट. बहुत सारे लोग लोन लेते थे पर उसको रीपेमेंट नहीं करते थे जिसकी वजह से रीजनल रूरल बैंक धीरे धीरे लॉस में जाने लगे. और आज इंडिया में लगभग बहुत सारे रीजनल रूरल बैंक को मर्ज कर दिया गया है और लगभग 43 रीजनल रूरल बैंक अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है. अब हम रीजनल रूरल बैंक के फंक्शंस को जानेंगे. तो ये बेसिकली क्या क्या काम करती है. ये क्रेडिट फैसिलिटी देती है. क्रेडिट फैसिलिटी ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए नहीं, हैंडीक्राफ्ट के लिए और बाकी दूसरे एंटरप्रेन्योर और कुछ और भी जो भी आपके जॉब्स वगैरह जो भी आप चाहते हैं किसी रूरल एरियाज में ओपन करना, स्टार्ट करना, तो उसके लिए भी बेसिकली ये आपको लोन प्रोवाइड करती है. इसका मेन एम क्या था कि जो बेसिकली रीजनल रूरल एरियाज में जो एक गैप बना हुआ है अर्बन और रूरल रीजन का, बिकॉज अर्बन एक लेवल पे डेवलपमेंट हो रहा था वहां पर अर्बन एरियाज में, बट रीजनल एरियाज में डेवलपमेंट कुछ भी नहीं था. तो एक गैप को भी खत्म करना चाहती थी बेसिकली रीजनल रूरल बैंक के थ्रू गवर्नमेंट कि यहाँ पर भी लोगों को प्रॉपर लोन और क्रेडिट की फैसिलिटी मिल सके. तो ये एक शॉर्टकट में ब्रीफ था आपका रीजनल रूरल बैंक के बारे में. अब हम रीजनल रूरल बैंक के बारे में लिखना शुरू. बैंक आर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक and in India लिखिए. रीजनल रूरल बैंक आर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इन इंडिया. बैंक इन इंडिया कंडक्टिंग इट्स मैम शेड्यूल्ड के बाद हाँ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया conducting banking activities for the rural region, conducting
banking activities, conducting banking activities for the rural region at the state level, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक क्या है? शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है आपके रीजनल रूरल बैंक। और ये जो है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक बेसिकली वैसे बैंक होते हैं जो आरबीआई एंड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर में उनको कुछ शेड्यूल किया गया था, लाइक शेड्यूल 1, 2, 3 इस तरीके से बांटा गया था। तो इसमें बेसिकली ये शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है, लेकिन ये काम कैसे करते हैं? ये काम करते हैं रूरल रीजन जो है, कहाँ पर? स्टेट लेवल में। जैसे बिहार में जो रूरल रीजन है, उड़ीसा में जो है, फिर आपके बंगाल में जो, लाइक दिस दे आर वर्किंग। क्लियर है? इसको लिखिए, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1976। मैम क्या बोले? कि आरआरबीज आर एस्टैब्लिश्ड, आरआरबी फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन 1976। जो पहला आरआरबी था वो 1976 में उसको एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है, 1976 में। और जो एक्ट था वो पास हुआ था 1975 में। आरआरबी एक्ट जो था वो बेसिकली पास हुआ था 1975 में, ठीक है। आगे लिखिए, फॉर आरआरबी फॉर्मेशन नरसिम्हा कमिटी वाज फॉर्म्ड। नरसिम्हा कमेटी को फॉर्म किया गया था फॉर आरआरबी के लिए, ठीक है, फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरआरबी नरसिम्हा कमेटी वाज फॉर्म, नरसिम्हा कमेटी वाज फॉर्म अंडर द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के अंडर में ये नरसिम्हा कमेटी को बनाया गया, एस्टैब्लिश किया गया। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन था उस समय, किसका राज चल रहा था, कौन प्राइम मिनिस्टर थी? हमारी इंदिरा गांधी। उस समय बेसिकली नरसिम्हा कमेटी को उनके अंडर में, उनके नेतृत्व में स्टार्ट किया गया, ठीक है, कमेटी को बनाया गया ताकि वो आरआरबी के बारे में रिपोर्ट्स वगैरह रेडी कर पाए और आरआरबी को एक बेटर वे में इम्प्लीमेंट करने की बात करें, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखिए ऑब्जेक्टिव क्या था, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फॉर मेकिंग आरआरबी। तो लिखिए कि आरआरबी वाज एस्टैब्लिश्ड with an objective of providing easily banking and credit services to the rural population. The RRB was established with an objective of providing easily accessible banking and credit service to the rural population, and mobilizing financial resources from the urban areas to rural district of India. The RRB were established with an objective of providing easily accessible banking and credit services to the rural population and mobilizing the financial resources from the urban areas to rural district of India. एग्जैक्टली इसका ऑब्जेक्टिव वही था जो मैंने आप लोगों को बताया कि बेसिकली क्रेडिट फैसिलिटी इजीली मिल सके और बैंकिंग की जो फैसिलिटीज है वो इजीली मिल सके। यानी कि अगर आपको कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना हो, सेविंग अकाउंट ओपन करवाना हो, कुछ एफडी करवाना हो, फिक्स डिपॉजिट कराना हो, जो भी बैंकिंग के सिस्टम है एक प्रॉपर वे में रूरल एरियाज में चले, फॉर्मल वे ऑफ लेंडिंग हो वहां पर, इसीलिए बेसिकली आरआरबी को लाया गया इसी ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में आरआरबी ने बहुत सारे एरियाज को कवर कर लिया। रूरल बैंक में भी सेम सिनेरियो था जैसा अर्बन बैंक में था। यहाँ पर भी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, चेयरपर्सन है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, रीजनल मैनेजर्स वगैरह सब है। अब हम ओनरशिप एंड स्पॉन्सरशिप के ऊपर आते हैं कि भाई ओनरशिप एंड स्पॉन्सरशिप कैसा है और कैसे आरआरबी को फॉर्म किया गया है। तो इसमें लिखिए द ओनरशिप ऑफ शेयर्स ऑफ आरआरबी, the ownership of shares of RRB in India
जो ओनरशिप है वो इंडिया में किस तरीके से डिवाइडेड है। द ओनरशिप ऑफ शेयर्स ऑफ आरआरबी इन इंडिया is divided among the central government, state government, central government, state government, and sponsoring banks, यानी कि जो ओनरशिप है बैंक आरआरबी का वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कुछ स्पॉन्सर्स बैंक जो है इनको मिलकर इनका ओनरशिप को हैंडल करती है। अब इसमें किस किस तरीके से रेशियो दिया हुआ है, तो लिखिए सेंट्रल गवर्नमेंट आपका 50% शेयर्स लेता है आरआरबी का, आरआरबी के ओनरशिप पे राइट उसका 50% है, 50%। स्पॉन्सर बैंक जो है वो 35%, स्पॉन्सर्स बैंक आपके 35%। इसमें एसबीआई आता है स्पॉन्सर बैंक में, वन ऑफ द बिगेस्ट स्पॉन्सर बैंक में एसबीआई है आपका। नेक्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कितना है, स्टेट गवर्नमेंट का 15%, 15% ओनरशिप। ठीक है, जो स्पॉन्सर बैंक है वो एक तरीके से आरआरबी की ग्रोथ में हेल्प करती है। ठीक है, और क्या क्या चीजें करती है स्पॉन्सर बैंक। स्पॉन्सर बैंक ट्रेनिंग की फैसिलिटी देती है आरआरबी के स्टाफ को। जैसे आपने सुना होगा कि आपके किसी भी घर में किसी भी पर्सन का बैंक में हुआ होगा तो उन्होंने बोला होगा आपको कि हमारी ट्रेनिंग चलती है कुछ महीनों के लिए। तो लाइक वो ट्रेनिंग जो अर्बन एरियाज में बैंक के लिए चलती है, वैसे आरआरबी में भी जो भी वर्कर या फिर जो भी स्टाफ होंगे, जो भी रिक्रूटमेंट जिनकी भी होगी, उनका ट्रेनिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्पॉन्सर्स बैंक जो है, स्पॉन्सर्स वाले जो बैंक है वो बेसिकली उनकी ट्रेनिंग का खर्चा उठाती है। किसके ट्रेनिंग का, आरआरबी के स्टाफ का। ठीक है, और लगभग मतलब वही एक कंसल्टेशन पीरियड लगभग 5 साल तक कंसल्टेशन का भी काम करती है, कंसल्ट वगैरह करना, ट्रेनिंग वगैरह देती है। कौन, आपकी स्पॉन्सर्स बैंक। ठीक है, नरसिम्हा कमेटी के बारे में लिखिए था एक लाइन कि नरसिम्हा कमेटी को फॉर्म किया गया था 1975 में। ठीक है, और सबसे पहला जो आपका आरआरबी जो था ना, सबसे पहला जो आपका आरआरबी था, इसको एस्टैब्लिश किया गया था, यानी कि फर्स्ट जो एस्टैब्लिशमेंट 5 बैंक का, 5 आरआरबी का एक साथ हुआ था। शायद मैंने आपको 1976 बोला था, 1975 2 अक्टूबर को इनको इस्टेब्लिश कर दिया गया था, बना दिया गया था। बैंक बन गए थे 5 रीजनल रूरल बैंक, बट इनको ऑपरेटिव जो था ना, ये ऑपरेटिंग में आया है आपका 1976 में। तो 5 आरआरबी को इस्टेब्लिश किया गया 1975 2 अक्टूबर, यानी कि गांधी जयंती वाले दिन 5 आरआरबी को इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, 1976 से दे स्टार्टेड ऑपरेटिंग। ठीक है, अब आरआरबी की कुछ बातें और हम लिख लेते हैं कि आरआरबी और क्या करती है। ठीक है, तो आरआरबी जो है वो कुछ असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है, किसको, एमएसएमई को प्रोवाइड करती है। ठीक है, आपका एमएसएमई क्या होता है, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस जिनको हम कहते हैं। तो इसमें लिखिए कि द आरआरबी एक्ट 1976 states the functions of RRB to provide financial assistance to farmers को तो फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, कॉमा MSMEs को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस किसको देती है, फार्मर्स को, एमएसएमई को, कॉमा करके लिखिए लोकल क्राफ्ट्समैन को, जो लोकल क्राफ्ट वाले लोग हैं उनको भी क्या प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस। लोकल क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिशंस फॉर एग्रीकल्चर के लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, कॉमा इंडस्ट्रीज के लिए भी देती है, ट्रेड के लिए भी देती है, कॉमर्स के लिए देती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए देती है। क्या, फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी पैसे। किस किस चीज के लिए देगी, फार्मर्स को देती है, एग्रीकल्चर के लिए देती है, क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिशंस को देती है। ठीक है, एमएसएमई को देती है, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है,
अभी लिखिए करेंटली देयर आर 43 आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, अभी लगभग कितने हैं? 43 रीजनल रूरल बैंक है इंडिया में। और बहुत सारे बैंक जो थे अमेलगमेशन हो गया, लगभग 190 से ज्यादा बैंक एग्जिस्ट करता था पहले, ठीक है, अब लगभग घट करके 43 रह गया। सोच के देखिए, बहुत सारे बैंक को अमेलगमेट किया कर दिया गया है, यानी मिला दिया गया है। इसके बारे में तो आप लोगों ने भी सुना होगा आई गेस। अमेलगमेशन पता नहीं क्या होता है, बट इसका मीनिंग ऑफ अमेलगमेशन बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी 25 आरआरबी 10 बैंक में बन गई। पहला फेज में लगभग 67 बैंक बचा, सिर्फ और सिर्फ 190 से 67। उसके बाद फिर मार्च 2016 तक सिर्फ 56 बैंक बचा, 56। और अभी 2020 में देखे तो सिर्फ 43 बैंक बचा है। लगभग मान लो कि पहला फेज जो अमेलगमेशन का आया तो 190 से बैंक कितने बच गए? लगभग 67। 2013 में सिर्फ 67 आरआरबी बचे। 2016 में ये बैंक के नंबर्स और भी डिक्रीज होकर सिर्फ 56 बैंक बचे, 56 आरआरबी, एंड करेंटली देयर आर ओनली 43 आरआरबीज अवेलेबल। फंक्शंस क्या है आरआरबी का? व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ आरआरबी? फंक्शंस क्या है आरआरबी में? लिखिए एक्सेप्ट डिपॉजिट। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आरआरबी? राइट, एक्सेप्ट डिपॉजिट, एक्सेप्ट डिपॉजिट, एक्सेप्ट डिपॉजिट, यानी डिपॉजिट लेता है जैसे बाकी बैंक लेते हैं डिपॉजिट। आप जैसे बैंक में जाके पैसा जमा करते हो, डिपॉजिट करते हो, वैसे ये भी अपना डिपॉजिट करता है। आरआरबी जो है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है जिनका भी अकाउंट होगा आरआरबी में, जैसे हमारा बीओआई में, आईसीआईसीआई में, बाकी ऐसे होते हैं, वैसे आरआरबी में जिनका अकाउंट होगा वो बेसिकली अमाउंट को डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। और इनके पास भी सेम वही ऑप्शन है कि करंट अकाउंट में भी डिपॉजिट कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट में भी कर सकते हैं, ठीक है। रिकरिंग अकाउंट जिनको कहते हैं करंट अकाउंट, एंड सेविंग अकाउंट का ऑप्शन इनको भी मिलता है कहाँ पर? रीजनल रूरल एरियाज में। और डिपॉजिटर्स जो है वो एफडी भी कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली कुछ रिकरिंग अकाउंट्स भी ओपन कर सकते हैं, करंट अकाउंट्स वगैरह। तो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, तो नॉर्मल बैंक का फंक्शन है उसी तरीके से। सेकेंड इज लोन एक्सटेंशन, राइट। सेकेंड फंक्शन इज लोन एक्सटेंशन, लोन एक्सटेंशन, लोन एक्सटेंशन। तो लगभग जो आरआरबी है आपका, ये बेसिकली लोन का अमाउंट भी प्रोवाइड करता है, किसको? लोगों को प्रोवाइड करता है लोन का भी अमाउंट, और क्रेडिट सर्विसेज वगैरह देता है, ठीक है। जो लोन एक्सटेंशन से जो सेम बाकी बैंक करते हैं, सेम उसी तरीके से लोन देता है। शॉर्ट टर्म लोन्स भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि कुछ फार्मर्स को अगर क्रॉप्स के लिए लोन चाहिए होता है तो शॉर्ट टर्म लोन्स भी प्रोवाइड करता है, एंड लॉन्ग टर्म लोन्स भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और बहुत ही लो रेट इंटरेस्ट रेट में ये लोन देता है किसको? फार्मर्स वगैरह को, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए वेज डिसबर्समेंट, वेज डिसबर्समेंट, वेज। द थर्ड पॉइंट लोन एक्सटेंशन हो गया, करेंट वो डिपॉजिट हो गया, एक्सेप्ट डिपॉजिट। थर्ड जो फंक्शन है दैट इज वेज डिसबर्समेंट, डिसबर्समेंट या वेज डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख सकते हैं आप, वेज डिस्ट्रीब्यूशन। डिसबर्समेंट यानी कि जो वेजेस जो होता है ना मनरेगा के तहत, जो लोगों को बोलते हैं ना अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस मिलते हैं, जिसको बोलते हैं बेरोजगारी भत्ता, तो उसका भी ये अमाउंट जो है लोगों तक, यानी कि जो वहाँ के लोग हैं जो मनरेगा के अंडर में जो मजदूर हैं जो काम करते हैं, उनके वेजेस वगैरह को भी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम आपका आरआरबी करता है। तो आरआरबी बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करता है वेजेस किसके अंडर में? मनरेगा एक्ट के अंडर में, ठीक है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, और जो मनरेगा वगैरह में जिसमें वेजेस वगैरह मिलते हैं, जो वहाँ के मजदूर होते हैं, तो उनका वेज देने का भी काम कौन करता है? आरआरबी। और इवन ये पेंशन का भी काम स्टार्ट कर दिया, पेंशन भी प्रोवाइड किया जाता है। पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम के अंडर में जो पॉवर्टी लाइन जो बीपीएल के अंडर में आते हैं, उनको पेंशन भी इसी बैंक के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कराया जाता है। तो यहाँ पर ये 3 काम करता है, मनरेगा के अंडर में जो भी आपके वेजेस वगैरह है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, प्रधानमंत्री आपका ग्राम सड़क योजना है उसके लिए जो वेजेस है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करता है, और पेंशन